इसमें 2 लेग्स होंगी और दोनों लेग्स जो है वो सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगी जब भी हम क्लैंपिंग करेंगे, तो वी कैन यूज सेम प्रेशर ऑन दी 2 पार्ट्स. Then this is the latch clamp. Again it is a type of toggle clamp you can say. और इसमें भी जो है ना ये लीवर को पुश एंड पुल करके we can directly clamp and unclamp. The latch clamp work by latch and a pivoted leaf. The leaf is closed on the work and it is kept in the position by the latch. The work is gripped by the spring fitted on the face of the leaf. The loading and unloading arrangement is quick but the clamping pressure is not very high in this device. Latch clamp में जो clamping pressure होगा that is generally not very high. Then cam clamp. Here we have a clamp that uses the principle of cam. देखिए यहाँ पे जो लास्ट जो पोर्शन है इसमें एक कैम लगी हुई है और विद द हेल्प ऑफ दिस लीवर वी कैन लोड और अनलोड. तो कैम क्लैम्प में सबसे खास बात होगी कि मतलब इसमें हम ईजिली लोडिंग एंड ईजिली क्लैम्पिंग एंड डी क्लैम्पिंग कर सकते हैं. मतलब जस्ट बाय पुशिंग और पुलिंग द लीवर वी कैन क्लैम्प एंड डी क्लैम्प. तो ये जो ऑपरेशन जो हुआ द रेट ऑफ मतलब कि क्लैम्पिंग और डी क्लैम्पिंग होगी दैट इज़ वेरी हाई इन दिस केस ऑफ क्लैम्प और मतलब क्विक ऑपरेशन हो जाएगा हमारा. देन power clamping. A number of clamps can be operated simultaneously by power clamping. The power clamping can be broadly divided into following categories, that is pneumatic, hydraulic and pneumato hydro clamping. Power clamping में क्या है कि we will use some device, some power for the purpose of clamping. तो इसमें मेन 3 तरह से कर सकते हैं. न्यूमेटिक से यानी कि with the pressure of air we can clamp and unclamp. Then hydraulic with the pressure of fluid we can clamp and unclamp. And then pneumato hydro जिसमें कि हम दोनों प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं. हाइड्रोलिक फ्लूइड भी यूज़ कर सकते हैं एंड न्यूमेटिक एयर भी यूज़ करेंगे. Then this figure shows this figure summarize the clamping devices. These are the different type of clamping devices which I have earlier discussed. Then pneumatic clamping. This is a figure for pneumatic clamping. Pneumatic clampings are very rapid in operation क्योंकि इसमें जो clamping होगी और declamping होगी वो easy होगी. Just we have to press the button और प्रेशर रिलीज़ होते ही जो है क्लैम्प डीक्लैम्प हो जाएगा और प्रेशर बिल्टअप होगा तो क्लैम्पिंग हो जाएगी. यहाँ पे ये देखिए ये एक सर्किट शो किया हुआ है कि कैसे क्लैम्पिंग और डी क्लैम्पिंग हो रही है. यानी कि जैसे हम फ्लूइड को रिलीज़ करेंगे तो डी क्लैम्पिंग हो जाएगी और फ्लूइड को जो अगर हम टाइट करेंगे तो क्लैम्पिंग हो जाएगी. ऐसे ही दिस इज़ अ फिगर फॉर न्यूमेटिक क्लैम्पिंग. अगेन इट इज़ hydraulic clamping. Unlike air, hydraulic oil are almost incompressive. Consequently, variation in load does not cause much speed variation in the hydraulic system. Hydraulic system जो है जहाँ पे हमें मोर पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो वी कैन यूज़ हाइड्रोलिक सिस्टम क्योंकि फ्लूइड जो होते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड्स आर इनकम्प्रेसिबल जनरली. Next is the jigs. What is the drill jig? Drill jig are used for holding the workpiece and it guide the drill through the drill bushes. ड्रिल जिग क्या होगा? जिग इज़ अ स्पेशल डिवाइस जिसमें कि हम क्या करेंगे कि ड्रिलिंग जिस पार्ट पे हमने ड्रिलिंग कर रही है वी विल होल्ड दैट वर्क पीस एंड जो जिग होगा इट विल ऑल्सो गाइड द ड्रिल और यू कैन से द टूल. नाउ टाइप ऑफ ड्रिल जिग्स. तो दीज आर द general type, that is plate jig, template jig, vice jig, diameter jig, channel jig, open type jig, box type jig and indexing jig. So these are the generally used drilling jigs. Now this is the figure of a drill jig. Here we can see कि this is the jig and this is the workpiece. This workpiece is located in the jig and then here we have to this is the guiding mechanism. With the help of this guiding mechanism we are able to drill the workpiece. Again it is a figure for drill jig. Here this is the drill and this is the workpiece and we have located this workpiece on this table with the help of these clamps etc. Now again this is the drill jig. यहाँ पे ये देखिए ये जो है ये पोर्शन टूल को गाइड भी कर रहा है और एज वेल एज इसको लोकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है.
then it is another kind of drill jig. Here this plate is secured on the table with the help of this jig, and here this is the tool which is used to drill the plate. Now jig bushes. Jig bushes are used in jigs for guiding tools like drill, rimel, boring bar, etc. These allow the easy entry of the tool. जिग बुशेज क्या होते हैं? जिग बुशेज जो भी हमारा ड्रिल जिग होगा तो उसके अंदर हम बुश यूज़ करेंगे. तो बुश क्या काम आते हैं? बुश आर जनरली यूज्ड फॉर गाइडिंग द टूल्स, और जिसमें कि ड्रिल, रिमर, बोरिंग बार जो भी अगर हमारा टूल है तो जिग्स जो बुशेज होंगे, बुशेज आर रिक्वायर्ड टू गाइड द टूल, आर यूज्ड टू गाइड द टूल इन द जिग्स. टाइप ऑफ बुशेज में फिक्स्ड बुशेज, लीनियर बुशेज, slip in bushes, renewable bushes, extended drill bushes and screw drill bushes. We will discuss these bushes. तो these are the kind of bushes. देखिए ये एक सिंपल लाइनर बुश होगा. these are the headed bushes, इनमें हेड लगा हुआ है. ये एक एक्सटेंडेड बुश है, एंड these are the simple plain bushes. तो these are the different type of bushes which are generally used for locating, which are generally used for guiding the वर्क पीस. इसमें देखिए लाइनर बुशेस में एक हमारा बेनिफिट है कि अगर बुश ख़राब होता है तो वी कैन रिप्लेस द बुश ओनली, यानी कि हमें पूरा का पूरा जो हमारा जिग जो है वो रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा. जब भी हम जिग यूज़ करेंगे, जिग मतलब बुश जब हम यूज़ करेंगे तो क्योंकि टूल जब एंटर करेगा तो इट विल एंटर इनटू द बुश ओनली. तो अगर कोई पार्ट ख़राब होता है या वियर एंड टियर होता है तो जनरली बुश की वियरिंग एंड टियरिंग होगी, और जिसको कि हम बाद में रिप्लेस कर सकते हैं. अगेन these are the again another types of bushes. ये यहाँ पे देखिए these are the special kind of bushes जो कि हम easily यानी कि locate हम कर सकते हैं और easily इसको remove कर सकते हैं. यहाँ पे ये all these are the kind of jig bushes. Now milling fixture. A milling fixture is designed to hold, locate and support a workpiece during the milling operation while producing means to reference and align the cutting tool to the workpiece. Milling fixture जो है, fixture is generally used for milling and lathe operations etc. तो milling fixture जो है इसमें हम क्या करते हैं कि it is designed to locate and support the workpiece, यानी कि सबसे पहले locate करेंगे workpiece को, उसको support करेंगे और then उसको hold करेंगे for the purpose of milling operation. मिलिंग फिक्चर डज नॉट गाइड द कटिंग टूल पॉजिटिवली, क्योंकि फिक्चर जो है वो गाइड नहीं करते कटिंग टूल को, तो मिलिंग फिक्चर भी जो है इट विल नॉट गाइड द टूल. देन प्रोवाइड्स अ मीन्स टू रेफरेंस एंड अलाइन कटिंग टूल टू द वर्क पीस. इसमें क्या होगा कि मिलिंग फिक्चर जो होगा उसमें एक रेफरेंस पॉइंट होगा जिससे कि हम जो है टूल को सेट कर सकते हैं. मतलब इट विल नॉट गाइड द टूल बट इट वुड प्रोवाइड सम रेफरेंसिंग, यानी कि एक पर्टिकुलर डेटम या एक पर्टिकुलर प्लेस प्रोवाइड करेगा कि विद रेफरेंस टू दैट प्लेस वी कैन सेट आवर टूल और वी कैन अलाइन आवर टूल. देन डिज़ाइन टू होल्ड द वर्क पीस रिजिडली अगेंस्ट द कटिंग फोर्सेस. मिलिंग फिक्चर जो है वो वर्क पीस को कटिंग फोर्सेस के अगेंस्ट जो है होल्ड करने के लिए डिज़ाइन करेंगे. ऑलवेज सिक्योरली क्लैम्प टू द मशीन टेबल. जो फिक्चर होगा, मिलिंग फिक्चर जो होगा वो हमेशा जो हमारी टेबल होगी मशीन टेबल के साथ सिक्योरली हम उसको क्लैम्प करेंगे. देन दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द मिलिंग फिक्चर. फर्स्ट वन इज़ द बेस प्लेट. सबसे पहले एक बेस प्लेट लगी होगी मिलिंग फिक्चर में, उसके ऊपर जो है उसकी सारी कंस्ट्रक्शन होगी. देन रेस्ट ब्लॉक और नेस्ट लगा हुआ. देन क्लैंप्स, उसको क्लैंपिंग के लिए. देन लोकेटिंग पॉइंट्स, उसमें लोकेटिंग पॉइंट होंगे. कोई भी वर्क पीस जो हमने लोकेट करना है तो लोकेटिंग पॉइंट्स होंगे. देन टूल सेटिंग ब्लॉक एंड टेनेंस. टूल सेटिंग ब्लॉक मीन्स यानी कि एक रेफरेंस जिसके अकॉर्डिंगली जो है ना हम टूल की अलाइनमेंट करेंगे, तो वो एक टूल सेटिंग ब्लॉक उसमें लगा होता है. और टेनेंस लगे होते हैं. टेनेंस मीन्स कि जो हमारा फिक्चर होगा तो फिक्चर को हम मशीन टेबल पे फिक्स करेंगे, तो उसके लिए जो फिक्सिंग के लिए जो हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं तो दैट एलिमेंट्स इज नोन एज टेनेंस. तो विद द हेल्प ऑफ टेनन वी कैन फिक्स द फिक्चर ऑन द मशीन टेबल. इसमें देखिए
we can see the figure of the milling cutters and the milling fixture. Here this is the milling fixture, and this is the milling cutter, and this is the वर्कपीस. हेयर दिस इज द वर्कपीस. तो ये वर्कपीस जो है ना हमने फिट किया हुआ है यहाँ पे ऑन द मिलिंग फिक्सचर विद द हेल्प ऑफ दिस. और ये फिक्सचर जो है ये टेबल पे सिक्योर किया हुआ है, और टेबल के ऊपर फिक्सचर एंड देन फिक्सचर के ऊपर वर्कपीस, और दिस इज द मिलिंग कटर. देन अगेन दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ मिलिंग फिक्सचर. ये देखिए यहाँ पे दिस इज़ दी टेनन. टेनन जो है ये यूज़ की हुई है मशीन टेबल पे इसको फिक्स करने के लिए. ये हमारा मतलब कि क्लैंपिंग डिवाइस लगा हुआ है इसके अंदर. ये मूवेबल मेंबर लगे हुए हैं. ये दिस इज़ ए इंडेक्सिंग टाइप ऑफ मिलिंग फिक्सचर, और इसमें ये सारा का सारा अरेंजमेंट लगा हुआ है. ये लॉकिंग डिवाइस लगी हुई है इसमें. ये इसकी मेन बॉडी होगी, फिक्सचर की मेन बॉडी है यहाँ पे. और ये देखिए ये सेटिंग ब्लॉक है. सेटिंग ब्लॉक मीन्स कि जहाँ से टूल को रेफरेंसिंग प्रोवाइड करते हैं. तो ये एक हमने पॉइंट प्रोवाइड किया. जब भी हमने टूल की डायरेक्शन लेनी है या टूल का कोई डिस्टेंस लेना है तो वी विल टेक दैट डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट. अगेन इट इज़ अ सिंपल काइंड ऑफ मिलिंग फिक्सचर, और इट इज़ अ वाइस होल्डिंग डिवाइस. मतलब कि अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ वाइस. ये देखिए वाइस की तरह से है. यहाँ पे ये वर्क पीस है, और ये हमने स्क्रू क्लैंप इसमें यूज़ किया हुआ है फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लैंपिंग. और यह है यहाँ पे हम बोल्ट लगा के हम इसको टेबल पे सिक्योर कर सकते हैं. नाउ एडवांटेजेस ऑफ जिग एंड फिक्सचर. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ जिग एंड फिक्सचर. फर्स्ट वन इज इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी. जब भी हम जिग एंड फिक्सचर यूज़ करेंगे तो इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम. कैसे ये इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी? क्योंकि देखिए अगर हमने मास प्रोडक्शन करनी है तो मास प्रोडक्शन में क्या होगा कि कोई भी जो आर्टिकल है, मास प्रोडक्शन में हम बेनिफिट तभी उठा सकते हैं जब हमारे जो आर्टिकल हम जो है ना फास्टर रेट पे प्रोड्यूस करें. तो होल्डिंग और अनहोल्डिंग टाइम जो है वो दैट इज़ ए सिग्निफिकेंट टाइम इन दी प्रोडक्शन. अगर होल्डिंग और अनहोल्डिंग टाइम को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी. तो विद द हेल्प ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर वी कैन रिड्यूस द टाइम फॉर होल्डिंग एंड अनहोल्डिंग. क्योंकि फिक्सचर और जिग हम जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ऑपरेशन जो होगा वो बहुत ही हमको क्विक ऑपरेशन कर सकते हैं. और जो हमारा जो टाइम है या जो उस प्रोसेस में जो हमारी लेबर है तो वी कैन रिड्यूस दैट लेबर ऑल्सो. देन रिड्यूस लीड टाइम. अगेन मतलब कि हम इनको कोरिलेट कर सकते हैं दोनों पैरामीटर्स को. रिड्यूस लीड टाइम में भी क्या है, लीड टाइम क्या होता है कि इट इज़ द टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ ए जॉब टू द फिनिशिंग ऑफ द जॉब. तो लीड टाइम जो है हम इसमें रिड्यूस कर सकते हैं. लीड टाइम में क्या है कि जैसे जब हमने ऑर्डर रिलीज़ किया कि आज हमारी जॉब बननी स्टार्ट हुई और जिस दिन वो बन के तैयार हो गई तो वो सारा का सारा टाइम जो है वो लीड टाइम कहलाता है. तो अगर हम जिग एंड फिक्सचर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि होल्डिंग और अनहोल्डिंग इजी हो जाएगी, और साथ में क्या होगा कि वो रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा उसको. फिक्स जो हमारा वर्क पीस है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा. तो हमारा ऑपरेशन जो है वो भी सेफ़ एंड साइलेंट ऑपरेशन होगा. और हम क्या कर सकते हैं कि जो कटिंग फोर्सेस होंगे वो हम जो है ईज़िली ट्रांसमिट कर सकते हैं मशीन पार्ट को. तो वहाँ पे जो है ना हमारा टाइम जो होगा, जो लीड टाइम होगा, दैट विल बी रिड्यूस्ड. देन ग्रेटर मशीनिंग एक्यूरेसी. एक्यूरेसी जो है भाई वो इंक्रीज हो जाएगी. क्योंकि देखो जब हमारा जो होल्डिंग है वो अगर प्रॉपर हो रही है, जब हम प्रॉपरली किसी भी पार्ट को होल्ड कर पा रहे हैं तो वहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो अपने आप ही ज़्यादा आएगी. क्योंकि जनरली क्या होता है कि कोई भी जो मतलब कि हमारा जॉब है तो इन एक्यूरेसी का जो मेज़र कहा जाए दैट इज़ द वाइब्रेशन. और वाइब्रेशन कब आती है? जब हमारा वर्क पीस या टूल जो है वो सही ढंग से होल्ड ना किया हो. क्योंकि अगर ज़रा सा भी उसमें इनसिक्योरिटी होगी, अगर टूल या वर्क पीस ढंग से होल्ड नहीं किया होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी. और जहाँ पे भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी वहीं पे इनएक्यूरेसीज आएंगी और क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी. तो हम जो क्या है कि क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाई we can enhance the quality, we can enhance the accuracy by the use of jigs and fixture.
तो इसमें नेक्स्ट जो है ग्रेटर मशीनिंग एक्यूरेसी मीन्स कि एक्यूरेसी जो है हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग टाइम ऑफ द कंपोनेंट इज़ लेस, अगेन द सेम थिंग कि लोडिंग टाइम अनलोडिंग टाइम और हैंडलिंग टाइम जो होगा कंपोनेंट का वो कम हो जाएगा, यानी कि मटेरियल हैंडलिंग टाइम या हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है वो उसमें ग्रेटली हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। लोडिंग अनलोडिंग में क्या हुआ कि जैसे हम क्लैंप यूज़ कर रहे हैं, लोकेटिंग डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो वी आर जनरली यूज़ सच टाइप ऑफ क्लैंपिंग जिसमें कि लोडिंग और अनलोडिंग ईजी हो और क्विक हो, तो वी कैन यूज़ वेरी क्विक ऑपरेशंस। तो हमारा जो काम होगा, जो कंपोनेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम होगा, वी कैन रिड्यूस दैट टाइम। देन सेमी स्किल्ड लेबर कैन बी एम्प्लॉयड, जब हम जिग एंड फिक्चर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम सेमी स्किल्ड लेबर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो जहाँ पे जिग एंड फिक्चर यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ पे वर्कर को सारा का सारा काम करना पड़ेगा, होल्डिंग का जो भी काम होगा और जो अलाइनमेंट का जो काम होता है, बेसिकली होल्डिंग के अलावा जो अलाइनमेंट का जो काम है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, क्योंकि अगर टूल वर्क पीस के साथ सही अलाइनमेंट में नहीं होगा तो उसकी जो वर्किंग जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी और इनएक्यूरेसी आएगी। अगर फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर भी अगर हमारा टूल डिस्प्लेस हो जाता है जो उसका एक्चुअल पाथ है उससे, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारी जॉब होगी वो ख़राब हो जाएगी, उसकी जो सरफेस फिनिश है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए जिग एंड फिक्चर अगर हम यूज़ करेंगे तो जिग में तो देखिए वी हैव प्रोविज़न फॉर गाइडिंग दी वर्क पीस की गाइडिंग द टूल की डायरेक्टली वो टूल को गाइड करेगा, और फिक्चर में भी हम एक रेफरेंसिंग प्रोवाइड करते हैं टूल के लिए कि इस रेफरेंस से हम उसको पैरामीटर्स लेंगे। तो जब जिग एंड फिक्चर यूज़ कर रहे हैं तो सेमी स्किल्ड लेबर भी कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से जो है ना हमने इसकी पैरामीटर लेना है, तो डायरेक्टली ही कैन मेजर। बट अगर हम वो यूज़ नहीं कर रहे तो फिर उसके लिए उसको पहले रेफरेंस सेट करना पड़ेगा और सारी चीज़ मापनी पड़ेगी और फिर उसको करना पड़ेगा। Then next is the less expenditure on quality control. Again the same thing कि जो क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेसेस है उनके ऊपर खर्चा कम आएगा, क्वालिटी ज़्यादा, क्योंकि सबसे पहले देखो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी तो क्वालिटी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। देन ऑपरेशन जो है वो स्टैंडर्डाइज हो गया और एक मतलब कि एक सिस्टम, एक फिक्स सिस्टम हो गया उसका, तो उस हिसाब से जो है ना जो हमें जो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो कम करना पड़ेगा, तो उस पर एक्सपेंडिचर भी हमारा कम आएगा। देन वाइडन द टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ द मशीन, एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है कि इट विल वाइडन द टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ द मशीन, मीन्स कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के जिग और फिक्चर यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन जो है मशीन पे कर सकते हैं, यानी कि मशीन की जो टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो मशीन है हमारी तो दैट इज़ ए रिस्ट्रिक्टेड वन, कि हम स्पेशल तरह की उस पर जॉब बना सकते हैं, इस डायमीटर की जॉब बना सकते हैं या इस डायमेंशंस की जॉब बना सकते हैं। पर जिग एंड फिक्चर अगर हम यूज़ करते हैं तो वी कैन चेंज द डायमीटर, चेंज द यू कैन से कि द शेप और चेंज द साइज़ ऑफ द वर्क पीस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के वर्क पीसीज और डिफरेंट डिफरेंट शेप के वर्क पीसीज जो है ना हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो इट इज़ द मेन एडवांटेजेस। देन रिडक्शन इन मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशन, जो मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशन है वो हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जब जिग एंड फिक्चर से काम हो रहा है, जब होल्डिंग उनसे हो रही है, अनहोल्डिंग उनसे हो रही है, इजेक्टिंग हो रही है, तो मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे या कम कर सकते हैं। और मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशन में देखिए सबसे पहले तो क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशंस होंगे, देन उनमें क्या है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि हो सकता है कि ढंग से टाइट ना हो, लूज़ रह जाए या ज़्यादा टाइट हो जाए, तो वो वर्क पीस को ख़राब करेगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है ना हम उससे मतलब कि छुटकारा